Good morning children, this is class 5 social studies, and in this video I am going to discuss about chapter number 2, the 4 stone ages. And previously we have discussed the beginning part of this, and in this video or in this chapter we can say especially we will discuss and we will study about the stone age and 4 stone ages we can say, because stone age is divided in 4 parts or 4 ages we can say. Ages का मतलब ये है period, set period of time. Okay, that is why it is called ages. So we had already seen that stone age is divided into these 4 ages. We have already studied about it. Number 1, we will see the names of all the stages, ages, and then we will later on discuss one by one. Okay, now first one, Paleolithic age, Mesolithic second number, then third Neolithic, and the fourth Chalcolithic. Okay, so we will study these ages one by one. So first of all we will go to the primitive age or the old stone age, that is Paleolithic age. Okay, that is on page number 13 children, 13. Yes, same page. Okay, same page. And after now as the page is ending, I am finishing, I will turn over the page, then we will discuss from the next page, page number 14. Okay, let me read it first. Page number 13, last part of it. The primitive age or the prehistoric age, and this the name of this first number age, the Paleolithic age or the old stone age. सिंपली हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं, और पेलियोलिथिक एज तो ये है ही, ठीक है. पेलियोलिथिक अगर आपको हार्ड लगता है तो ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हैं इसको हम लोग. ये सबसे ओल्डेस्ट एज है स्टोन एज की, सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहली और सबसे पुरानी, ठीक है. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ देयर इन इट. देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एंशिएंट period of history from the years 5 million BC to 10,000 BC. This Paleolithic age lasted from 5 million BC to 10,000 BC. Okay, तो उसका कोई written record नहीं है. Okay, no, there is no, but this is the oldest age. This age is called this age is called primitive age or the prehistoric age. Okay, कि हिस्ट्री से पहले की प्री हिस्टोरिक माने हिस्ट्री जहाँ से हम लोगों की रिकॉर्ड हुई है, उसके कोई रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, उससे भी पहले का एज है ना, इसलिए कोई रिटन रिकॉर्ड्स इसके नहीं हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेलियोलिथिक एज. नाउ वी विल सी दैट पेलियोलिथिक एज, दिस वर्ड कहाँ से आया, पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेलियोलिथिक. ओके, पेलियोलिथिक इज़ ए ग्रीक वर्ड. बहुत से पुराने वर्ड जो हैं वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुए हैं उनका, और उनका मीनिंग हम वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस Greek word, consisting of 2 Paleolithic means this Greek word consists 2 Greek words, namely Paleos, which means old, and Lithos, which means stone, means old stone age. Paleolithic means old stone age. Hence this age is also called old stone age. Okay, if we break this Paleolithic word, so उसकी 2 parts होते हैं, आप समझ गए. पेलियोस मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन. ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. ओके, इन दिस एज मैन यूज स्टोन फॉर हिज क्रूड टूल्स एंड वेपन्स. और इस एज में द ओल्ड प्रिमिटिव पीपल हैड एंशिएंट, और वी कैन से आवर एंसेस्टर्स, दे यूज्ड क्रूड टूल्स. मीन्स कि जो क्रूड मीन्स एज क्रूड से कहते हैं कि जैसा उन्होंने पाया, उसका मतलब उसमें कुछ चेंजेस वैसे नहीं किए, उसका शेप वगैरह चेंज किया होगा, बट एज इट इज़, जैसे स्टोन जो था, जिस मटेरियल का बना हुआ, जितना हार्ड, जितना विच कलर इट हैड, और हार्डनेस एंड सेम थिंग. क्रूड माने विच ही फाउंड फ्रॉम द नेचर. ओके, क्रूड टूल्स. और कभी कभी तो उसको ऐसे भी मिल जाते होंगे कि उसको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता होगा. आई कैन से कि ऐसा शेप होता होगा कि उनको वो टूल्स की तरह यूज़ कर सके. सपोज any piece of stone had pointed shape from one side point, so वो तो उसको मिल गया. there was no need to make it to prepare it.
ठीक है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता था उसमें, उसको वैसे ही एज इट इज़ क्रूड, और इसीलिए कहा जा रहा है क्रूड टूल्स, माने कि जैसा भी जो पीस, ऐसा भी कभी ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन्स वर फाउंड इन द नेचर एंड दे वर इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा थे पड़े हुए थे इधर उधर, तो दे ही यूज़ टू पिक देम अप, और उसको सोचता था कि किस तरह से इसको हम टूल के रूप में यूज़ कर लें। एंड वीपन्स, और वीपन की तरह भी था, बिकॉज ही यूज़ टू किल द एनिमल्स विद द पॉइंटेड स्टोन्स। ओके, तो वो बिल्कुल उसी तरह का काम करते थे जैसे कि कोई पॉइंटेड कोई भी वेपन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैन डू। ठीक है, हिज लाइफ वॉज ओनली ए लिटिल बेटर देन दैट ऑफ एनिमल्स इन द जंगल। वॉट इज़ रिटन हियर नाउ, कि उसकी लाइफ जो थी वो सिर्फ जो एनिमल्स थे जंगल के उनसे थोड़ी सी बेटर थी, because he at that time also he used to live in the jungle as the animals, older wild animals live, and because he was a human being, तो थोड़ा उसको he had sense, he has brain to think, he had this sense to save himself from the wild animals, that is why it is called कि वो his life was little better, जानवरों से कुछ बेहतर थी। He used to roam like the animals in the jungle, he used to whatever, he used to kill the small animals, जो भी मिलते थे। द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो डू द सेम थिंग, वो रोमिंग भी करते हैं, छोटे जानवरों को भी मार के खा जाते हैं, और ओपन में रहते हैं, केव में मौका मिलता है तो दे एंटर द केव ऑल्सो, तो ही ऑल्सो यूज टू लिव इन द केव, बट थोड़ा सा बेटर था बिकॉज ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस विच इज़ गिवन इन दिस ब्लॉक। न्यू वर्ड्स, स्टोन एज, प्रिमिटिव एज एंड पेलियोलिथिक एज। स्टोन एज में क्या है, द एज व्हेन मैन यूज स्टोन्स टू मेक वेपन्स एंड टूल्स, इट इज कॉल्ड द स्टोन एज, है ना, ये जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं वही है ये। देन प्रिमिटिव एज, एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये भी वही है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं कि उसके बारे में कोई हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड नहीं है। देन पेलियोलिथिक एज, द अर्ली स्टोन एज व्हेन मैन लेड द लाइफ ऑफ ए फूड गैदरर, अ वेंडरर एंड यूज स्टोन फॉर हिज टूल्स एंड वीपन्स। उसका दो काम मेन थे। फूड गैदरर माने बस खाना इकट्ठा, अपना खाने की खोज में घूमा करता था। ये कैसे, गैदर करना माने इकट्ठा करना। तो एवरी टाइम ही यूज टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि उन दिनों में तो कोई कल्टिवेशन नहीं था कुछ भी, ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स एंड ऑल, सो ही हैड टू फाइंड, ही हैड टू गैदर फूड। हर समय उसको चिंता होती थी कि हम अपना खाना कहाँ से ढूंढें, कहाँ से पाएँ, कहाँ से क्या मिल जाए जो हम खा के अपना टू सेटिस्फाई द हंगर। ओके, एंड वेंडरर, वेंडर कहते हैं जो घूमता रहता हो हर समय, घूमने वाला, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, बिकॉज उसको घूमना पड़ता था बिकॉज उसकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। इन सर्च ऑफ फूड ही हैड टू वेंडर हियर एंड देयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वी विल डिस्कस इन द कमिंग पॉइंट्स हाउ द अर्ली मैन, वाई ही वॉज कॉल्ड वेंडरर और हंटर, है ना, हंटिंग करनी पड़ती थी जस्ट टू गेट द फूड, और वेंडरिंग इसलिए करनी पड़ती थी कि सर्च ऑफ न्यू फूड की कहाँ से और मिलेगा, है ना। डेफिनेटली एनिमल्स कभी उसको मिल जाते होंगे लेकिन उसको सर्च करना पड़ता था। अब एनिमल्स उसके पास अपने आप से तो आएंगे नहीं कि हाँ भाई लो हमको मारो और खा जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं था। सो ही हैड टू फाइंड, ही हैड टू सर्च, दैट इज़ वाई ही यूज टू वेंडर हियर एंड देयर। एक स्थान पे वो टिक के रह ही नहीं पाता था, उसको हर समय खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड वेंडर। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज देयर इन दिस पॉइंट। द प्रिमिटिव मैन इन द ओल्ड स्टोन एज वॉज ए हंटर एंड ए वेंडर, दिस इज व्हाट वी वर सेइंग राइट नाउ। हंगर वॉज नेचुरल टू मैन, येस, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ, कि ही हैड टू एवरी टाइम ही हैड टू सेटिस्फाई हिज हंगर। भूख तो उसको लगती थी, जैसे अभी हम लोग भी हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हम लोग को भी टाइम टू टाइम भूख लगती है ना। We eat one meal, then after few hours again we want to eat something, then again at least we eat 3 meals in a day. तो 3 भी नहीं खाता होगा तो एटलीस्ट 2 तो खाते ही होगा, इन द मॉर्निंग और इन द नाइट एटलीस्ट, है ना, आफ्टर द गैप ऑफ फ्यू आवर्स। सो हंगर वॉज ए बेसिक नीड ऑफ द प्रिमिटिव मैन। सो हंगर वॉज नेचुरल टू मैन, नेचुरल चीज़ थी कि उसको भूख लगनी थी, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं अपना खाना कैसे तैयार करें, बिकॉज क्रॉप्स थी नहीं, कुछ और था नहीं, बस खाली जो कुछ भी वट एवर वॉज अवेलेबल इन द नेचर ही यूज्ड टू कैप्चर दैट
either the animals or fruits or anything which he used to dig from the ground. कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्राउंड से निकलती थी, जिनकी रूट्स वगैरह वो खा लेता था या फ्रूट्स खा लेता था. सो जस्ट टू सेटिस्फाई हिज हंगर, है ना. ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड. नहीं पता था कि खाना कैसे तैयार करूँ, खाना बनाना पकाना. एज वी नाउ प्रिपेयर द फूड फ्रॉम द रॉ आइटम्स, उसके पास तो कुछ भी नहीं था. सो वाइल्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स एंड बेरीज बिकेम हिज नेचुरल फूड. हाँ, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बहुत से पेड़ पौधे जो थे उनके फ्रूट्स को वो खाता था. स्वीट फ्रूट्स, कुछ पेड़ों की जो जड़ें थी वो मीठी होती थी, जैसे कि शकरकंदी होती है ना, वी कैन से स्वीट पोटैटो. वो मान लीजिए हो मिल जाता हो उसको, ये कुछ थोड़ी सी मीठी लगती होंगी, कड़वी नहीं होती होंगी, बिटर नहीं टेस्ट होता होगा, तो उन्हें वो खा जाता था. एंड बेरीज, कुछ ऐसे फल जो अपने से लग जाते हैं जंगल में, है ना. बेरी बोलते हैं उसको, बेर जिसको कह सकते हैं, जंगली बेर जिसको बेर से मतलब है यहाँ. और सम अदर ऑफ द सेम फैमिली, है ना. बेरीज से मतलब ये है कि कुछ जंगली फल जो होते हैं वो अपने से ही जंगलों में अपने पेड़ से पेड़ निकल आते हैं और अपने से ही वो फलने फूलने लगते हैं. तो वो उसको देवर अवेलेबल टू हिम इन ए प्लेंटी, बड़ी मात्रा में मिलते थे क्योंकि जंगल था. सो ये सब चीज़ें उसकी फूड बन गई थी. ही एट दीज इन रॉ फॉर्म, और वो उन्हें कच्चे रूप में ही खाता था. जैसा वो पाता था बस उसको वैसा ही खा जाता था. ही नेवर, ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक. कुकिंग की उसको कोई मतलब ही नहीं था, रॉ फॉर्म में खाता था. एंड हियर वी कैन से फोटोग्राफ ऑफ अर्ली मैन एज ए हंटर. यू कैन सी 2 अर्ली मैन आर किलिंग वन सच ए बिग एनिमल. द अर्ली मैन एज हंटर, शिकारी. हंटर कहते हैं शिकारी को जो हंटिंग करे, मार शिकार को मतलब किसी भी जानवर को मार देना, उसको घायल करना, उसको मार देना और उसको फिर ही यूज़ टू ईट. कि उसको मिलता था कि ये सामने है, चलो हम इसी को खा के अपनी उसको हंगर को सेटिस्फाई करें. बिकॉज उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, जो सामने आता था उसको वो खाने की कोशिश करता था. सो now we go to the other part of it. Here on page number 14 में ही हम ऊपर से राइट साइड से पढ़ रहे हैं. he also saw wild animals around in the jungle. He began to hunt them and ate their raw meat. Yes, as I have told you in the beginning also कि अर्ली मैन जो था वो उसको दिख जाते थे जानवर अपने आसपास, तो ही यूज़ टू हंट देम, उन्हें पकड़ के मार देता था विद द हेल्प ऑफ द स्टोन्स, है ना. हमने आपको पता है पॉइंटेड स्टोन्स. ही यूज़ टू यूज़ पॉइंटेड स्टोन्स विच ही फाउंड इन द नेचर. ही यूज़ टू यूज़ देम एज वेपन्स. ओके. एंड ही यूज़ टू ईट रॉ मीट. वो कच्चा मांस ही खा जाता था. यू कैन इमेजिन, बाद में जब व्हेन द फायर वाज इन्वेंटेड देन ओनली ही स्टार्टेड रोस्टिंग एंड ऑल दैट. उसको भूनना पकाना समझ लिया उसने. पहले तो देयर वाज नो फायर थी ही नहीं, तो वो उसको कच्चे ही फॉर्म में. हाउ टेरेबल इट वाज टू ईट रॉ मीट ऑफ एन एनिमल. ओके. एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू डाइजेस्ट द रॉ मीट, है ना. बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट ईट. We can eat vegetables or fruits in a raw form but not meat. So it was difficult for him. He had a hard life. सुनने में अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा, बट दैट इज़ ए फैक्ट. ये सच्चाई है कि ऐसा ही था. बिकॉज उसके पास फायर नहीं थी, तो फायर के बिना तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कुक एनीथिंग, है ना. जब व्हेन फायर वॉज इन्वेंटेड डेफिनेटली, आफ्टर दैट ही स्टार्टेड रोस्टिंग द एनिमल्स, किलिंग देम एंड रोस्टिंग. उसको भून भान के उसको ही यूज़ टू ईट. उसको लगा कि हाँ दिस इज़ गुड, वो टेस्ट में भी अच्छा है और इजी टू ईट ऑल्सो. उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है उसको खाने में. रोस्टिंग माने भूनना, उसको आग में भून लेना, उसको पका लेना, तो वो कुक हो जाता था और डाइजेस्ट करना भी इजी था. ओके. तो ये सब चीज़ें बाद में आई. ओके. नाउ वी विल सी देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई प्रिमिटिव मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस few points why the early man used to roam or move, we can say, place to place. एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों करता था. नंबर 1, search of food. That was prime his need. The primitive man was not a food producer but a food gatherer. वो प्रोड्यूसर नहीं था, वो खुद उगाना बोना नहीं जानता था, खेती बाड़ी करना नहीं जानता था, कुछ भी नहीं. बस उसको खाना अपना इकट्ठा करना होता. तो वॉट एवर ही फाउंड इन द नेचर.
If he had stayed at one place for a long time, he would have eaten up all the available plants and animal resources. तो क्या हुआ कि वेंडरर वो क्यों बना? बिकॉज अगर वो एक जगह पे लंबे समय तक रह जाता था तो उस जगह पे जितने अवेलेबल प्लांट्स होते थे और एनिमल्स होते थे वो सबको खा जाता था, तो वो ख़त्म हो जाते थे। तो उसको अगेन ही हैड टू मूव, ही दैट इज़ व्हाई ही बिकेम वेंडरर। सो ही हैड टू मूव एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, और उसको कहीं और जाना पड़ता था सर्च करने के लिए, है ना। धीरे धीरे जहाँ जितने भी अवेलेबल होते थे, जहाँ वो होता था, ही यूज्ड टू ईट देम, और मे बी व्हेन दे वर इन बिग नंबर, अगर नंबर एक अकेला तो नहीं था ना, देयर मे बी मैनी, सो इन नंबर बिग नंबर, तो वो तो कितने लोग मिलके खाएंगे तो वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। देन सेकेंड वन, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। सी what is written in it? The primitive man was not aware of domestication of animals. पुराने समय में का जो इंसान जो था उसे ये नहीं पता था कि कुछ जानवर, ग्रेजुअली ही केम टू नो अबाउट कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको वो कंट्रोल, डोमेस्टिकेशन मीन्स कंट्रोल करके उनको पालतू बनाना, है ना। देयर वर सो मैनी एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड और वैराइटीज़, है ना। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही केम टू नो कि कुछ को हम पकड़ के अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड को करना, जैसे कि जो आप खुद ही जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जैसे कि हॉर्स है, कैमल है, काव है, बफलो है, डोंकी है, इस सब को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, यानी हम इन्हें पालतू बना के इनको अपने अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, है ना। एलिफेंट ऑल्सो, सो बट देर वर सम अदर वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो, उनको कंट्रोल करना इट वॉज नॉट सो ईजी। तो वो धीरे धीरे ये जान गया कि कुछ को हम पकड़ के अपने पास रख सकते हैं, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, यानी कि उनको पालतू बना सकते हैं। एज एनिमल्स यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ही फॉलोड दैम। और एनिमल्स ऑल्सो हैड टू सेटिस्फाई देयर हंगर, उन्हें भी तो कुछ खाना था, तो वो भी अपने इन सर्च ऑफ फूड दे यूज टू रोम हियर एंड देयर एंड वेंडर हियर एंड देयर, वो भी घूमते रहते थे जंगल में। सो ही यूज टू फॉलो दैम, वो उनके पीछे पीछे भागता था उनको पकड़ने के लिए, बिकॉज दे यूज टू वंडर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड। आपको पता है कि कुछ जानवर जो होते हैं इन द सम बिग एनिमल्स, दे किल द स्मॉल एनिमल्स, दैट इज़ देयर फूड, है ना। एज यू नो दैट बिग एनिमल्स जो होते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, दे किल द स्मॉल एनिमल्स। तो इसीलिए बिकॉज दे यूज टू रोम अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, तो ही यूज टू फॉलो देम, वो उनको फॉलो करता था, क्योंकि दे नेवर यूज टू सिट एट वन प्लेस ना, बिकॉज उनको भी अपनी हंगर सेटिस्फाई करनी होती थी। दैट्स वाई ही यूज टू फॉलो, सो ही ऑल्सो बिकम ए वेंडरर। वो घुमक्कड़ वो भी बन गया, यानी कि उनके पीछे पीछे घूमने लगा। देन डिफरेंट सीजन्स, थर्ड पॉइंट इज़ डिफरेंट सीजन्स। सीजन्स की भी बात आती है, एज यू नो दैट सीज़न चेंज होते थे, तो ही यूज टू थिंक कि भाई ये सीज़न चेंज हो रहे हैं, कभी बहुत इट्स वेरी हॉट, कभी कोल्ड बहुत हो रहा है, कभी रेन्स आ गई, कभी कुछ। देन प्लांट्स, सीजन्स में इसका एक ये भी चीज़ होता था कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। आपको पता है कि जो स्पेशली द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम अकॉर्डिंग टू द सीज़न, है ना। तो उसको हर सीज़न चेंज हो जाते थे। एक सीज़न का जब फ्रूट ख़त्म हो जाता था तो वो पेड़ ही इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनी फूड और एनी फ्रूट। सो सीजन्स के चेंज की वजह से, बिकॉज ही हैड टू वेट फॉर दैट सीज़न, है ना, एज वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, है ना। सो he moved from one region to another. Then now here we are talking about the region, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसे जाना पड़ता था in search of different kinds of plants and fruits. Yes, क्योंकि डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें डिफरेंट सीजन्स भी अलग अलग होते हैं ना। जैसे हमारे देश में इस समय गर्मी है, तो लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अभी भी ठंडा है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, इवन इन द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, कि वहाँ जहाँ से अभी प्लेन्स में इंडिया के जैसे इस टाइम गर्मी है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे इतने अच्छे फ्रूट्स आते हैं जो कि हमें मिल जाते हैं वहाँ से, लॉन्ग वे वहाँ का वो आते हैं वहाँ से पैक होके, लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। तो दिस इज़ द थिंग कि अकॉर्डिंग टू सीज़न डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्रूट्स वर अवेलेबल, है ना। तो एक जगह नहीं मिल पाते थे उसको।
Then number four, that is very important, need of water. Water was also essential part of his life. Water, yes, उसको संग संग फूड के साथ संग वाटर की भी ज़रूरत पड़ती थी. So he had to move in search of water also, because jungle में water was not available everywhere. See what is written in it. People, plants and animals need water to survive. Yes. अब लोगों को, इंसानों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स छोटी नदियों में मिलता था, और रिवर्स बड़ी नदी में मिलता था. मैनी लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वर पेरेनियल्स हम कह सकते हैं. हम बताते हैं इसका मीनिंग क्या है भी. आई हैव रिटन इट. कुछ स्ट्रीम्स जो थी, कुछ लेक्स जो थी और रिवर्स जो थी, perennial, that means lasting long forever, है ना. कुछ लेक्स थी, कुछ झीलें थी, कुछ नदियाँ, छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ जो थी वो पेरेनियल थी, मीन्स जो हमेशा उसे मिल जाती थी. एंड अदर वर नॉन पेरेनियल. ओके. सो कुछ जो थी देवर लास्टिंग, पेरेनियल मीन्स लास्टिंग लॉन्ग और फॉर एवर, वो हमेशा ही रहती थी. वो देवर एट द सेम प्लेस. एज वी फाउंड बिग रिवर्स, वी कैन ऑलवेज गेट वाटर फ्रॉम देम, है ना. एंड सम वर नॉट, वो ड्राई अप हो जाती होंगी अकॉर्डिंग टू द वेदर. सो पीपल यूज टू माइग्रेट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन माने जब पानी उनमें नहीं होता था, स्पेशली द समर सीजन वी कैन से, तो उसको माइग्रेट करना पड़ता. माइग्रेट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसको सपोज उसकी वहाँ पे कोई ऐसी लेक होती थी या रिवर होती थी विच यूज टू ड्राई अप इन द ड्राई सीजन मीन्स समर सीजन, तो देयर वाज नो वाटर इन दैट, है ना. तो ही हैड टू मूव. लकीली अगर वो किसी बड़ी लेक और रिवर के पास रहता था तो वहाँ तो उसको मिल जाता था. बट अगर कोई ऐसी जगह रहता था जो छोटी स्ट्रीम होती थी, जो ड्राई अप हो जाती थी इन द समर सीजन, देन ही हैड टू मूव बिकॉज द वाटर वाज नॉट अवेलेबल इन दैट स्मॉल लेक और रिवर. वी कैन सी stream is a small river. Okay, so children, I think this is enough for today. Okay, thank you.